بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسی ہی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل جنت کا سفر کو سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نماز کی خوبصورت باتوں، نماز کا اجر اور صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جن نعمتوں سے نوازتا ہے ان سبھی باتوں کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو بڑا ہی اہم اور خاص ہے، اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے آخر تک دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور کافروں کے بیچ فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت دنیا اور آخرت کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون سے آیا کرو۔ جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں نہیں داخل ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے میں جو گناہ ہے، اگر گزرنے والا جانتا تو 40 سال کے کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ راوی کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ 40 دن کہے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑ دینا بندے اور کفر کے درمیان جوڑ لگا دینے والی چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی نمازوں نفل کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان اور صف اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑتی تو وہ قرآن اندازی بھی کرتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جمعے میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، ان کے حق میں ارادہ کرتا ہوں کہ حکم کروں ایک شخص کو جو لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں جلا دوں ان لوگوں کے گھر جو جمعے کو نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जब कोई बंदा जिक्र और नमाज के लिए मस्जिद को ठिकाना बना लेता है तो अल्लाह पाक उसकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है, जैसा कि जब कोई गायब आता है तो उसके घर वाले उससे खुश होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में जमाई आना शैतान की तरफ से है, लिहाजा जब तुम में से किसी को नमाज में जमाई आए तो जहां तक हो सके मुंह को बंद किए रखे। अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। नमाज मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। थोड़ी सी थकावट के लिए नमाज को ना छोड़ो। ऐ मोमिन, उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म पर खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। अल्लाह नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता, बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज के लिए वक्फ कर लो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। अगर मस्जिद में नमाज के दौरान पिछली सफ से बच्चों की आवाजें ना आए तो फिर अगली नस्ल के दीन की फिक्र करो। नमाज कब काम आएगी? फजर मरते वक्त, जोहर कब्र में, असर मुनकर नकीर के सवालात के वक्त, मगरिब हिसाबो किताब के वक्त, इशा पुल सिरात पर गुजरते वक्त। कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला। कोई कज़ा करके रोया, कोई अदा करके रोया। नमाज वो वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ताला ने आसमान से वही के जरिए नहीं उतारा, बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया। नमाज कभी ना छोड़ो, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा जिंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए एक सजदा कर लें। नमाज वो रस्सी है जो इंसान को अल्लाह से जोड़े रखती है। जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा अल्लाह हजार रास्ते निकाल देता है। नमाज को मत छोड़ना, जिंदगी की सारी बरकत इसी में है। अपने नजर की हिफाजत करना, क्योंकि गुनाह की बुनियाद यहीं से शुरू होती है। सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हों, लेकिन मामूली से बादल उन शुआओं को रोक देते हैं। इसी तरह गुनाह कितने ही ताकतवर क्यों ना हों, नमाज उन्हें रोक देती है। कितना हसीन होता है वो लम्हा जब हम सजदे में आंसू बहाकर अपने रब से कुछ मांगे, हमें वो कुछ देर बाद ही उस चीज से नवाज दे। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब तुम्हारा अगली नमाज पढ़ने का दिल करे। मसरूफ जिंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है, लेकिन नमाज मसरूफ जिंदगी को आसान बना देती है। या अल्लाह, हमें ऐसा नमाजी बना दे कि फिर हमारा नमाज पढ़े बगैर गुजारा ना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा की वो अल्लाह के जिम्मे है। सजदे की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजों में से एक नमाज ऐसी भी है कि जिससे वह छूट जाए गोया उसका घर बार सब बर्बाद हो गया। वो असर की नमाज है। फजर का वक्त होता ही इतना पुरसुकून है कि चरिंद परिंद, हवाएं, घटाएं, आसमान, यहाँ तक कि कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती दिखाई देती है। जब 5 वक्त की नमाज भी अल्लाह से गुफ्तगू करने के लिए कम पड़ जाए तो समझ जाओ कि अल्लाह से तुमको मोहब्बत हो गई है और उसने आपको अपने करीब कर लिया है। बहुत कीमती होते हैं वो दुख जो आपको नमाज तक ले आते हैं। फजर की नमाज कज़ा करके कामयाब सुबह की उम्मीद रखना नादानी है। तहज्जुद के वक्त अगर आँख खुले तो समझ लो कि बुलावा आसमान से आया है। क्या ये सजा काफी नहीं कि अल्लाह तुमको सब कुछ देकर भी सजदों की तौफीक नहीं दे रहा? कब्रों में बेशुमार लोग ऐसे दफन हैं जिन्हें कल से नमाज शुरू करनी थी। नमाज को मत कहो
कि मुझे काम करना है, बल्कि तुम काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। जिस्म की तंदुरुस्ती नमाज में है, दिल की ताकत कुरान में है, दिमाग की कुव्वत जिक्र इलाही में है और रूह की राहत दुरूद पाक में है। नमाज मिट्टी से बने इंसान को सोना बना देती है। नमाजी पर से अजाब कब्र हटा लिया जाता है। नमाजी पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। नमाजी हिसाबो किताब से महफूज रहेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा। वो फजर और असर की नमाज है। बुखारी शरीफ की रिवायत है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जब सूरज गुरूब होता है यानी डूबता है तो उस वक्त शैतान और तमाम शैतानी चीज बाहर निकल आती हैं। अगर तुम लोग उससे बचना चाहते हो तो उस वक्त मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला उस नमाज के जरिए तमाम सरकश शयातीन और गंदे जिन्नात वगैरह से तुम्हारी हिफाजत फरमा देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह पाक एक के बदले 100 या उससे भी ज्यादा देगा। रमजान के महीने में नूर बरसता है और हमारा रब तरावी पढ़ने वालों को देखता है, और जो लोग तरावी की नमाज पढ़ते हैं उन्हें अल्लाह की रहमत हासिल होती है। नमाज दुनिया और आखिरत के खजानों की चाबी है। नमाज बड़ी से बड़ी बुराइयों को रोक देती है और नमाज सुकून का समंदर है। ऐसा कोई जख्म नहीं जिसकी शिफा तहज्जुद में ना हो। हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर तुम पानी में डूब रहे हो और तुम्हें याद आ जाए कि नमाज का वक्त है तो तुम नमाज की नियत कर लो। बहुत सुकून है इसमें जिसे लोग नमाज कहते हैं। बेशक नमाज से ज्यादा किसी और चीज में सुकून नहीं है। याद रखो, नमाज 5 वक्त और अखलाक 24 घंटे फर्ज है। सभी परेशानियों का एक वाहिद हल नमाज है। रब से इश्क में एक मुकाम ऐसा भी आता है, दुआ तो बहुत दूर की बात है, बंदा सिर्फ सोचता है और अल्लाह पाक नवाज देता है। या अल्लाह, हमें ऐसी इज्जत और खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज करने से हासिल हो। सजदे की खूबसूरती ये है कि हम जमीन पर सरगोई करते हैं और वो अर्श पर सुनी जाती है। जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला और उसके बंदे के दरमियान पर्दे हट जाते हैं। नमाज का दर्जा दीन में ऐसा है जैसे सर का दर्जा बदन में है। जमीन के जिस हिस्से पर नमाज के जरिए अल्लाह को याद किया जाता है वो हिस्सा जमीन के दूसरे टुकड़ों पर फख्र करता है। मुसलमान जब तक 5 नमाजों को फिक्र के साथ अदा करता है, शैतान उससे डरता रहता है, और जब इंसान नमाजों में कोताही करने लगता है तो शैतान उस पर दिलेर हो जाता है। जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई न देखे तो उसको जहन्नम की आग से आजाद होने का परवाना मिल जाता है। जो 5 नमाजों का एहतिमाम करता है और वुजू, रुकू और सजदे वगैरह को खूब अच्छी तरह से पूरा करता है तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोज़ख उस पर हराम हो जाती है। जो शख्स सुबह की नमाज के लिए जाता है तो उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है, और जब बाजार को जाता है तो उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद आबाद करने वालों से हटा ली जाती है। अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम कर दिया है। अल्लाह ताला को इंसान की सारी हालतों में से सबसे ज्यादा पसंद ये है कि उसको सजदे में पड़ा हुआ देखे। अल्लाह ताला के साथ बंदे को सबसे ज्यादा कुर्बत सजदे की हालत में होती है।
नमाजी शहंशाह का दरवाजा खटखटाता है और कायदा है कि जो दरवाजा खटखटाता ही रहे तो वो खुलता ही है। नमाज दिल का नूर है, जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहे नमाज के जरिए बना ले। जो शख्स अच्छी तरह से वुजू करे, उसके बाद खुशू खुजू से 2 या 4 रकात नमाज फर्ज या नफिल पढ़े या नफिल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी चाहे तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है। जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तरह से तवज्जो फरमाता है, और जब वो नमाज से हट जाता है तो अल्लाह ताला भी अपनी तवज्जो को हटा लेता है। अल्लाह ताला ने कोई चीज ईमान और नमाज से अफजल फर्ज नहीं की। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ आदम की औलाद, तू दिन के शुरू में 4 रकात से आजिज ना बन, मैं तमाम दिन तेरे कामों की जिम्मेदारी ले लूंगा। सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह ताला के नजदीक वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। अफजल तरीन नमाज आधी रात की है, मगर उसके पढ़ने वाले बहुत ही कम हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दिल की शराफत तहज्जुद की नमाज में है। तहज्जुद जरूर पढ़ा करो कि तहज्जुद नेक लोगों का तरीका है और अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। तहज्जुद गुनाहों से रोकती है और गुनाहों की माफी का जरिया है। जो शख्स एक फर्ज नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला के यहाँ उसकी एक दुआ मकबूल हो जाती है। नमाज हर मुत्तकी की कुर्बानी है। नमाजी पर से रिज्क की तंगी हटा ली जाती है। अगर रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और कदम तहज्जुद की तरफ जा रहे हैं तो जान लो तुम्हारे रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया है। तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद लाडली इबादत है और अल्लाह के लाडलों को ही नसीब होती है। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ रद्द हो जाए ये तो सरासर नामुमकिन है। तुम अल्लाह को मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो ना माने ये तो नामुमकिन सी बात है। अगर तुम्हारे पास एक जाए नमाज है तो तुम्हें रोने के लिए कंधे तलाश करने की जरूरत नहीं। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने आपको करीब कर लिया है। तहज्जुद की एक दुआ सारी जिंदगी बदल देती है। तहज्जुद पढ़ा करो, इससे दुनिया की मोहब्बत जाती रहेगी और अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। मौजिज़े दुआओं से हैं और तहज्जुद की दुआएं सबसे लाडली होती हैं। तहज्जुद इश्क की नमाज है। तहज्जुद बहुत अफजल इबादत है। दोनों जहां का सुकून तहज्जुद की नमाज में है। तहज्जुद की दुआओं की वजह से तुम्हें वो हासिल हो जाएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब से खड़ी होती हैं तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सफ में होती हैं। वो सफ जिसे रब ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजना होता है। जब अल्लाह तुम्हारी कहानी बदलना चाहता है तब वो तुम्हें तहज्जुद से नवाजता है। तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत ये है कि तहज्जुद तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देती है। फिर इंसान की तलब नहीं जागती, फिर रब से मुलाकात की तलब होने लगती है। फिर रब से मुलाकात की तलब सोने नहीं देती, फिर बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है। तहज्जुद नसीब वालों को नसीब होती है और नसीब को 4 चांद लगाने की ताकत रखती है। तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं अल्लाह तक पहुंच गई हैं। अब तुम्हें सब्र का पहलू थामे रखना है, क्योंकि अब जो होगा वो मौजिज़ा होगा। तहज्जुद तुम्हारे लिए अल्लाह से कुन की सिफारिश करती है। तहज्जुद की नमाज अपने अंदर कुछ राज रखती है जिसे सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करने वाले ही जान पाते हैं। अगर तुम अकेले हो, कोई साथ नहीं देता, तो जान लो तहज्जुद रब से मिलवाने की ताकत रखती है। तहज्जुद की नमाज के लिए जागना अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक है। तहज्जुद का सजदा ही कुन फयाकुन तक लेकर जाता है। ये जो मायूसी है ये आज है, कल कहानी मुकम्मल होगी इंशाअल्लाह।
तहज्जुद से तुम्हारा तारुफ बेवजह तो नहीं हो रहा, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होना है। तहज्जुद तो उस नसीब से भी लड़ जाती है जिसके सामने तुम्हारी दुआएं भी बेबस हों। तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी से छोटी पुकार भी सीधे अर्श तक जाती है। यूं रातों में उठ उठकर सजदों की तौफीक मिलना ये बेमतलब तो नहीं है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला ने बनाई ही कबूलियत के लिए है। अगर तो कोई दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले गई है तो जान लो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत हो चुकी है। तुम उन सर्द रातों में जब अपना गर्म बिस्तर छोड़कर अल्लाह के सामने उसकी सबसे लाडली इबादत तहज्जुद के लिए खड़े होते हो तो वो तुम्हें देख रहा होता है, तो भला वो आपकी दुआएं क्यों कबूल नहीं करेगा। अल्लाह कहता है कोई मांगने वाला जो मांगे मुझसे मैं उसे अता करूं, तो जान लो तहज्जुद रब से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद के वक्त उठने वाला बहुत ही खुश नसीब होता है जो इंसान अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। तहज्जुद के वक्त खामोश आंखों से बहते आंसू और अल्लाह के सामने बैठे बेबस इंसान की फरियादें कभी जाया नहीं होती। तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ारो कतार रोते हुए आंसू कभी जाया नहीं होते। तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता, तब चारों तरफ उनकी सदाएं गूंजती हैं। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। तहज्जुद इश्क है और इश्क भी वो जब तक सांस नहीं लेता जब तक अल्लाह को राजी नहीं कर लेता। ला हासिल ख्वाहिशें, अधूरे किस्से, नामुकम्मल ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता जब बात तहज्जुद की दुआओं पर आती है। मैंने देखा है तहज्जुद की नमाज के बाद नामुमकिन को मुमकिन होते हुए। कुछ लम्हे बहुत खास और लाडले होते हैं। तहज्जुद में रब से बातें करना उन्हीं लाडले लम्हों में आता है और फिर अल्लाह भी लाड उठाता है। कोई दुआ अधूरी नहीं रहने देता। मांग कर तो देखो, हर चाहत पालोगे इंशाअल्लाह। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारे लिए मौजिज़ों का रास्ता बन जाएंगी और फिर तुम उन्हें भी मुकद्दर बनता देखोगे जिनका मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता है इंशाअल्लाह। तहज्जुद से तकदीर बदल जाती है। रातों में उठकर मांगो तो सही। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है वो कभी अधूरी नहीं रहती। जब तुम्हारे जहन में तहज्जुद पढ़ने का ख्याल बार बार आए तो समझ जाओ कि तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का परवाना मिल चुका है। तुम्हें क्या लगता है जब रात सोने के लिए बनाई गई है और हर शख्स सुकून की नींद सो रहा है तो क्या वो तुम्हें बिला वजह जगाए हुए है? नहीं, ये तड़प अल्लाह ने पैदा की है। जब तुम्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आती तो अल्लाह तुम्हें तहज्जुद की लगन में लगा देता है, एक नई उम्मीद जगा देता है। सुकून क्या है? अपने अल्लाह से अकेले खामोशी में गुफ्तगू करना। कितनी पुर असर होती हैं वो शिद्दतें जो तहज्जुद तक खींच लाती हैं। तहज्जुद की दुआएं मौजिज़े के इतना करीब होती हैं जितना अल्लाह उस वक्त तुमसे करीब होता है, और अल्लाह उस वक्त तुम्हारे कितना करीब होता है, इतना करीब कि खुदा और तुम्हारे दरमियान किसी तीसरे को आने की गुंजाइश नहीं रहती। तहज्जुद अल्लाह की महबूब नमाज है, तो फिर सोचो जिन्हें अल्लाह तौफीक देता है उन्हें वो कितना महबूब रखता होगा। तहज्जुद के वो सिसकते हुए सजदे ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का जरिया बनेंगे। तुम्हारी दुआओं के लिए मौजिज़ों का जरिया बनेंगे जो सिर्फ तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान हैं। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे उठा लिए जाते हैं और फिर अल्लाह ऐसे मौजिज़े करता है जो न कभी ज़मीन वालों ने देखे होते हैं और न आसमान वालों ने। सजदे तो बाद में आते हैं। तहज्जुद की सिर्फ नियत कर लेना ही अल्लाह को राज़ी कर देता है। तहज्जुद की नमाज मौजिज़ों का जरिया है। जब तुम्हें सारे रास्ते बंद नजर आते हैं
तब भी वो एक रास्ता खोले रखता है और वो है तहज्जुद का रास्ता। अल्लाह चाहता है मेरा बंदा रात को खामोशी में मुझसे हम कलाम हो और मैं सुकून से रात की खामोशी में अपने बंदे को सुन सकूं। अगर अल्लाह तुम्हारी फौरन सुन लेता तो क्या तुम तहज्जुद का मज़ा चख पाते? क्या उसकी मोहब्बत की लज्जत, कबूलियत की अहमियत जान पाते? वो महज इसलिए तुम्हारी निगाहों से रास्तों को ओझल कर देता है ताकि तुम उसे मनाने के लिए तहज्जुद तक आओ। किसी का दिल मत दुखाना, अगर उसने सब्र कर लिया तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। सब्र की हद तो ये है कि तकदीर के फैसले पर शिकवा ना हो। कुछ चीजें रोने से नहीं, सब्र करने से मिलती हैं। जो रब एक महीना सब्र करने पर ईद की खुशी से नवाजता है तो वो तुम्हारा सालों से किया गया सब्र कैसे बेकार जाने दे सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हर चीज का सवाब है लेकिन सब्र के सवाब का कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता। पता है सब्र किसे कहते हैं? जब आप जिंदगी के उस मुकाम पर हों जब आपका जोर जोर से रोकर अपनी तकलीफ का इजहार करने को दिल करे, लेकिन उसकी बजाय आप अल्लाह के फैसले पर राजी होकर खामोशी से वक्त गुजार लें और अल्लाह से दुआ करें, उसे सब्र कहते हैं। इंसान अगर माफ करना और सब्र करना सीख जाए तो जिंदगी आसान हो जाए। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों का मुकाबला शुक्र से करो। सब्र की एक और बात बहुत अच्छी होती है, जब आ जाता है तो किसी की भी जरूरत नहीं रहती। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी भर की मिठास छीन लेते हैं। सब्र के साथ आसानी का इंतजार करना इबादत है। दुनिया मकाफाते अमल है, सब्र कभी बेकार नहीं जाता। मुझे किसी मुसीबत में सब्र करने से ज्यादा ये पसंद है कि आफियत में रहूं और अल्लाह का शुक्र अदा करूं। सबसे बेहतर सब्र वो है जो तुम अल्लाह की रजा के लिए करते हो। ज्यादती इतनी ही करो जितनी खुद पे आए तो झेल सको, और सब्र उतना ही समेटो जितना खुदा का अजाब बर्दाश्त करने की हिम्मत हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला बन जाता है। सब्र क्या है? बिल्कुल खामोशी से, कोई शिकवा नहीं, अल्लाह पर यकीन कि हालात बदल जाएंगे, ना भी बदले तो फिर क्या, मेरे रब को बेहतर पता है, यकीनन उसमें बहुत भलाइयां होंगी। लेकिन सब्र कब आता है? अल्लाह से कुर्बत बढ़ने पर, यकीन होने पर। जिसको यकीन आ जाए अल्लाह पर, उसकी हिकमतों पर, उसके फैसलों पर, वो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं गिरता और कभी नहीं झुकता। बहुत से लोग अल्लाह को एक मानते हैं पर वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। वो अल्लाह के फैसलों को कबूल नहीं करते और मायूस हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अल्लाह पर यकीन करके फैसलों को कबूल करना सीखें और जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। समझ ना आया जिंदगी ये तेरा फलसफा। एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ ये कहती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। सब्र करें और अल्लाह पर छोड़ दें। जितनी मुश्किल आजमाइश होती है, सब्र के सिले भी उतने ही खूबसूरत होते हैं। आजमाइश हमारे सब्र का इम्तहान है और इस इम्तहान का इनाम वो है जो तुम अपनी दुआओं में मांग रहे हो। सब्र करना सीख लें, क्योंकि अल्लाह सब जानता है। वो जानता है कि आप कब कब किन किन वक्तों से गुजर रहे हैं, और अल्लाह वक्त बदल देता है, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं अपने बंदे की कोई महबूब चीज इस दुनिया से उठा लेता हूँ तो फिर वो सवाब की नियत से सब्र करे तो उसका बदला जन्नत है। यकीन है अगर खुदा पर, तो बुरा गुमान क्यों रखते हो? तुम दुआ तो करते हो पर सब्र नहीं करते। सब्र रखो कि उस रब के घर देर है अंधेर नहीं। सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक
अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र की हद ये है कि तकदीर पर कोई एतराज ना हो। सब्र रखें, अजियत अजर बन जाएंगी। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे उसे तवील जमाना लग जाए। सब्र करना सीख ले, अल्लाह सब जानता है। वो जानता है आप किन किन हालातों से गुजरे हैं। यकीन करें वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। चलो सब्र कर लेते हैं, सुना है रब सब्र करने वालों के साथ है। सब्र इंसान को टूटने नहीं देता। सब्र रख बंदे, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। अल्लाह हमारी आहटें भी सुनता है और पुकार भी, बस वो आपका सब्र आजमाता है। अल्लाह किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता, वो बस आजमाता है और सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। सब्र कोई कोई करता है और सब्र सबको आ जाता है। कुछ लोगों का सब्र उनकी खामोशी होती है। सब्र रखो, आने वाला कल बहुत खूबसूरत होगा। अल्लाह सुनता है, तुम सिर्फ सब्र करना सीखो। अल्लाह दुआ कबूल करता है और तुम सिर्फ मांगना सीखो। अल्लाह बहुत कुछ देता है, तुम सिर्फ बांटना सीखो। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वाले को पसंद करती है और अल्लाह रोने वाले को। कीजिए हर बात पर सब्र और शुक्र, क्योंकि बहुत हसीन है अल्लाह पर यकीन का सफर। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। 3 चीजें आपको कभी गिरने नहीं देती, सब्र, उम्मीद और यकीन। किसी को तकलीफ देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। तुम्हारा सब्र तुम्हें कामयाबी अता करता है। खुशी में जश्न से बेहतर शुक्र है और गम के शोक से सब्र बेहतर है। अल्लाह ताला ने जो दिया है वो उसी का है और जो कुछ लिया है वो भी उसी का है, और हर चीज की मुद्दत मुकर्रर है। बस सब्र करो। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो कोई मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल के हैं, उसके फैसलों का जवाल नहीं। सब्र तो आखिर करना ही पड़ता है, मगर शुरू में करने से अंजाम शानदार होता है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वो तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। हमें पता भी नहीं होता हमारा अल्लाह हमें किस किस मुकाम पर हमें गिरने से थाम लेता है। जहां इंसान की आखिरी हद खत्म होने लगती है, फिर वही रब फरमाता है कुन, हर नामुमकिन फिर मुमकिन हो जाता है। लोगों की नियतें देखकर परेशान नहीं होना है, अपने से कमतर लोगों को देखकर सुकून में रहना है। हमेशा जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस के बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। सब्र दरवाजा और माफ कर देना खैर के खजानों में से एक खजाना है, जिसे अल्लाह ताला सिर्फ अपने मुकर्रब और बेहतरीन बंदों को ही अता करता है। तकलीफ हमारे आमाल से आए या अल्लाह की तरफ से, मुकाम सिर्फ सब्र है। सब्र ऐसी चीज है जो किसी का भी गुरूर तोड़ सकती है। जो लोग सब्र रखते हैं या फिर जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। जिंदगी की किताब के सब पन्ने हमारे मुताबिक नहीं होते। अगर कोई ऐसा पन्ना सामने आ जाए जिसमें राहतें ना हों, तो सब्र कर लेना चाहिए। दुख में कभी भी पछतावे के आंसू मत बहाओ, बल्कि ये सोचो कि तुम वो खुश नसीब इंसान हो जिसको अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। जिस मुकाम पर आकर बर्दाश्त खत्म हो जाती है, उस मुकाम से सब्र शुरू होता है। जब तुम पर ऐसी मुश्किल आ जाए जो तेरे बस के बाहर हो, तो सब्र कर और अल्लाह की तरफ से कुशादगी का इंतजार कर। सब्र का रास्ता चुन लो, सब्र की मंजिल जन्नत है। जब जमीन तुम्हें तंग लगे तो आसमान की जानिब देखना, नम आंखों से मुस्कुराना और कहना, अच्छा तू ऐसे राजी तो मैं भी ऐसे ही राजी। आप हमेशा जब भी कोई काम करें तो बेहतरीन करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जो बोएंगे आखिर में वही काटेंगे।
हमारे मामलात हमारे इख्तियार में नहीं होते, मगर सब्र रखें, क्योंकि जिसके इख्तियार में हैं वो बड़ा गफूरुर रहीम है। हमारे रब ने हमारे मुकद्दर में सब कुछ बेहतरीन रखा होता है। बस सब्र करें, वो नवाजने वाली जात नवाजेगी। सब्र की एक शर्त होती है, ये सिर्फ उस मुसीबत पर किया जाता है जिससे निकलने का रास्ता मौजूद नहीं हो। किसी का मुसलसल सब्र भी आजमाना गुनाह है। हर खामोशी में अना नहीं होती, कुछ खामोशियां सब्र भी होती हैं। चुप रहना गुरूर नहीं, सब्र है। सब्र आ जाए तो फिर कुछ भी खो जाए तकलीफ नहीं होती, दिल बस शुक्र का विर्द करता रहे। सब्र कोई कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। कई बार बद्दुआ देने की नहीं, महज सब्र करने की जरूरत होती है। दूसरे बंदे पर वो सब्र बहुत भारी पड़ता है। तुम ये ख्याल करते हो कि तुम पर जुल्म किया जा रहा है, हालांकि अल्लाह तो राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। वो तुम्हारी तड़प को जानता है, तुम्हें समझता है। बस वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम दुनिया की जिंदगी में सुरखरू होकर आखिरत में बुलंद तरीन मुकाम हासिल कर सको। अपने इस तड़पते हुए दिल को समझा दो कि अल्लाह के फैसले हमेशा ढेर सारी खुशियां लाते हैं। बस तुम सब्र करो और फिर अपने ऊपर अल्लाह की इनायतों का बरसना देखो। अल्लाह ताला फरमाता है, ये सख्ती बस कुछ वक्त की बात है, सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ। आज मुश्किल वक्त पर अगर तुम सब्र कर रहे हो तो कल सुकून और खुशी तुम्हारा मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह। और क्या पता अल्लाह को तुम्हारा सब्र इतना पसंद आ जाए कि वो तुम्हारी मांगी हुई हर दुआ पर कुन कह दे। सुनो, सब्र करो, अल्लाह आपके दिल की सुनता है। आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो। वो आजमाता भी है और नवाजता भी है। उसका हर अंदाज खूबसूरत है, क्योंकि वो रहमान है, रहीम है। सब्र होता नहीं है, सब्र किया जाता है। और सब्र यही होता है कि अपने अंदर मचलते हर तूफान को खुद में थाम के उसके खत्म होने का इंतजार करना, अपनी शिद्दतों को खुद में इस तरह कैद कर लेना कि मामला सिर्फ अल्लाह का रह जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स दिल पर जोर डालकर सब्र करेगा, अल्लाह भी उसे सब्र देगा। किसी को तकलीफ देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। जो खुद नहीं बोल पाता उसका सब्र बोलता है। जो लोग नुकसान पर सब्र और शुक्र सीख लेते हैं, अल्लाह पाक उनके नुकसान को नफे में बदल देता है। सब्र करना अगर आसान होता तो अल्लाह ताला ने सब्र करने पर इतना अजर ना रखा होता। किसी के सब्र का इम्तिहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वाले को हमेशा पछताते हुए देखा है। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम्हारा रब तुम्हारा साथ देता है, और उससे बेहतरीन कोई साथी नहीं है। जब यकीन की डोर अल्लाह पर छोड़ दी जाती है तो फिर अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता। अल्लाह इंसान को आजमाता जरूर है, मगर आजमाइश में तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, और जब वो देता है तो हमारी सोच से कहीं ज्यादा देता है। जो अंधा भरोसा तुम लोगों पर करते हो, वो कभी अल्लाह पर करके देखो। यकीन करो, वो ना भरोसा तोड़ेगा और ना तुम्हें कभी टूटने देगा। अगर अल्लाह तुम्हारी कबूल कर रहा है तो वो तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। अगर दुआ कबूल होने में जरा देर कर रहा है तो वो तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं दे रहा तो वो तुम्हें आजमा रहा है। इसलिए दुआ मांगना कभी ना छोड़ना। वो देर कर रहा है तो तुम सब्र भी तो कर सकते हो। वो फौरन नहीं सुन रहा तो तुम इंतजार भी तो कर सकते हो। अगर उसे तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है तो तुम मायूस होने के बजाय दुआ का वक्त भी तो बढ़ा सकते हो। याद रखो, अल्लाह की मदद और नुसरत सब्र के साथ ही है, और हर तकलीफ और मुसीबत के बाद कुशादगी है, और बिलाशुबा हर तंगी और मुश्किल के बाद आसानी है।
अगर किसी ने अल्लाह को पाना है तो वो सब्र करने लग जाए तो उसका काम बन जाता है, जबकि लोग उसके लिए विर्द वजीफे करते हैं, नाक रगड़ते हैं, लेकिन अल्लाह को सब्र करने वाले पा लेते हैं। जिन रास्तों पर तुम्हें अल्लाह लेकर जाता है उन रास्तों पर तुम अकेले नहीं चल सकते, बल्कि वो तुम्हारे साथ चलता है। जब वो गम के हालात पैदा करता है तो वो तुम्हें उन हालात से लड़ने की हिम्मत भी देता है। वो ना तुम्हें खुशी में तन्हा छोड़ता है और ना ही गम में। अगर आज तुम अल्लाह की मान कर चलोगे तो वो रब तुम्हें तुम्हारी चाहत दे देगा, क्योंकि अल्लाह ताला को इख्तियार है, जो चाहे करे। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम थक चुके हो और दुआ मांगना भी मुश्किल लगे तो अल्लाह ताला के आगे सिर्फ हाथ फैला लिया करो। तुम्हारे फैले हुए हाथ इस बात का सबूत हैं कि तुम रब्बे कायनात के मोहताज हो, और मेरा रब खामोशियों को भी सुनता है। वो हर ख्वाहिश पर कुन कहने वाला है, वो सब्र के बदले सिला देने वाला है। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फैसले से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफूरुर रहीम है? अगर वो दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले नहीं बदल सकता? सब्र कर लो ये सोचकर कि जो हो रहा है उसमें अल्लाह की मसलिहत और तुम्हारी बेहतरी है। तुम बस सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए सब्र करो, वो इनाम में तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। हर रिश्ता कभी ना कभी मान तोड़ देता है और हर ताल्लुक कभी ना कभी भरम खो देता है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जिसका असर हमेशा कायम रहता है। सीखने की चीज इज्जत करना और इज्जत करवाना है, मोहब्बत तो खुद हो जाती है। अपने राज को पोशीदा रखना अपनी इज्जत को बचाना है। सच्चे इंसान के लिए झूठ में कोई अच्छा मकसद हो सकता है, लेकिन झूठे इंसान का सच सिर्फ आग लगाने के लिए होता है। इंसान को किसी हद तक अकेला रहना भी सीखना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन कब कहां साथ छोड़ जाए। हम भी कितने बेहिस लोग हैं, जब तक खुद पर बुरा वक्त नहीं आता तब तक हम दूसरों की तकलीफ को मामूली बात समझते हैं। इस भ्रम में ना रहें कि सभी रिश्ते खास होते हैं। आधे से ज्यादा रिश्ते आस्तीन के सांप होते हैं। 10% झगड़े इख्तिलाफे राय की बिना पर होते हैं और 90% गलत लहजे की वजह से। लिहाजा हमें अपने लहजों की दुरुस्तगी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बंदा बंदे के साथ नहीं बल्कि बंदे की आदतों के साथ रहता है। खुश रहना है तो तारीफ सुने और बेहतर होना है तो तनकीद सुने। कोई चाहे कितना ही खूबसूरत हो, लेकिन अगर मुखलिस रहना नहीं जानता तो कचरा है। जिंदगी की भागदौड़ और थकावट में बहन भाई हवादार खिड़कियों की तरह होते हैं। इन खिड़कियों को कभी बंद ना होने देना। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। आपका नाम रोजाना किसी की दुआओं में हो और आपको ये बात मालूम भी ना हो, इसे खुशबख्ती कहते हैं। मोहब्बत की शादियां नाकाम इस वजह से भी हो जाती हैं कि हम शादी से पहले अपनी तमाम मुस्बत बातें जाहिर कर चुके होते हैं और शादी के बाद तमाम मनफी बातों का नंबर आता है। जिंदगी में 2 नसीहतों पर अमल करना, हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। नमाज मत छोड़ना, क्योंकि जिंदगी की सारी बरकतें इसमें हैं। अपनी नजर की हिफाजत करना, क्योंकि गुनाह की बुनियाद यहीं से होती है। रूठना मनाना जिंदगी का हिस्सा है, बस ख्याल रहे नाराजगी जुबान तक रहे, दिल में इज्जत और प्यार हो। बर्दाश्त की सलाहियत खुश नसीबों को ही होती है। अखलाक का हुस्न जिस इंसान में आ जाए वो खालिक और मखलूक दोनों का महबूब बन जाता है। जब हम किसी के साथ ज्यादती करके उसका नुकसान कर देते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं, मगर वक्त कभी नहीं भूलता। वक्त वही सब कुछ और कई दफा बढ़ा चढ़ाकर वापस हमारी झोली में गिरा देता है। जिस घर में औरत की आवाज मर्द से ऊंची हो जाए, उस घर को 70,000 फरिश्ते लानत भेजते हैं।
सब्र रखो कि उस रब के घर देर है अंधेर नहीं। इंसान के लिए जरूरी है कि वो कुछ बने और कुछ बेहतर इस दुनिया में करके जाए, और इस सब के लिए उसे कुछ बुनियादी उसूल बनाने पड़ेंगे और फिर एक मुसलसल मेहनत की जरूरत है। अपने बच्चों को अभी से नेक लोगों की कहानियां सुनाओ ताकि वो भी बड़े होकर कुछ नेक करने की सोचें। दुनिया वालों की कहानियां सुनाओगे तो वो ज्यादातर अपने नफ्स को खुश करने का ही सोचेंगे, इससे आगे कुछ नहीं। जब खुद के लिए जीकर बोर हो जाओ और उकता जाओ तो दूसरों के लिए जीना शुरू कर दो। जब इंसान अल्लाह की रस्सी यानी दीन को छोड़ देता है वो बेमंजिल हो जाता है, और जो आदमी बेमंजिल हो जाता है उसे खुशी में भी एक किस्म की बेचैनी लगी रहती है। अगर आप छोटों पर शफकत नहीं करते तो फिर उनसे एहतराम की उम्मीद भी मत रखें। गुनाह गिने नहीं जा सकते, जो गुनाह आपने समझ कर किए वो तो आप गिन लेंगे। बाज़ औक़ात हम अपनी तरफ से नेकी कर रहे होते हैं और उसमें गुनाह होता है। बाज़ औक़ात हम परवाह ही नहीं करते, एक बात कह देते हैं, काम कर जाते हैं और वो बड़ा गुनाह हो जाता है। तो जाने अनजाने में सब गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज हर किसी का दिल परेशान है, इसलिए कि उसमें बंदे के अपने किरदार की नफरतों के कांटे हैं जो चुभ रहे हैं। अल्लाह के जिक्र से दिल को पाक रखो, इसमें सिर्फ अल्लाह है तो ये सुकून पा जाएगा। इस दुनिया की तकलीफ से, इस दुनिया की तंगी से राहत हासिल करनी है तो अल्लाह को याद करो। कोशिश करो शब व रोज अल्लाह की याद में बसर हो। दीन का काम करते रहो, दीन की बात करते रहो, दीन की बात सुनते रहो। दुनिया के काम भी जब शरीयत के मुताबिक किए जाएं तो वो भी दीन बन जाते हैं। जुल्म का बदला जुल्म से दिया जाए तो जुल्म चलता रहता है, इसलिए जुल्म का बदला इंसाफ से करना, और इंसाफ बतौर सजा नहीं होता। इंसाफ जिंदगी की हिफाजत के लिए जरूरी है। जहां से इंसाफ उठ जाता है वहां दहशतगर्दी होती है। हमें अल्लाह से ये शिकायत तो है कि हम मुसलमान हैं और हम पर काफिरों को चढ़ा रखा है और अल्लाह हमारी मदद नहीं करता, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारा किरदार कितना गलत है, और नतीजा तो अमल पर है और किरदार पर मुरतब होगा। हर गुनाह हया को ख़त्म करता है और बेहयाई को जन्म देता है। शैतान अल्लाह के गज़ब से डरता है जबकि मोमिन मोहब्बत इलाही में डरता है। दीन अल्लाह का, दुनिया अल्लाह की, हम अल्लाह के, हर कोई अल्लाह का, हर चीज़ अल्लाह की। फिर अल्लाह की गैरत को दीन की बेकदरी कैसे गवारा हो सकती है? क्या तुम्हें मरना याद नहीं और ये याद नहीं कि दुनिया आखिरत की खेती और चंद रोज़ा है? सारा दिन कारोबार के ही पीछे पड़े रहते हो। कारोबार अपने अपने घरों में किया करो और अल्लाह की जिक्र की मजलिस में अल्लाह का जिक्र किया करो। कुरान करीम तमाम इंसानियत के लिए नाजिल फरमाया गया है। अब ये फैसला इंसान को करना है कि शुक्र की राह इख्तियार करता है या नाशुक्री की। कोई राहत या आसानी मिल जाए मगर बदला लेने का भी हक है आपके पास, और अगर आप सब्र कर रहे हैं तो बेशक वो ज्यादा अफजल है। किसी भी साबिर इंसान से ज्यादा बहादुर कौन होगा? सब्र बुज़दिली नहीं, बहादुरी है। अपने सब्र पर पछताएं मत, बस रब पर छोड़ दें। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र करो, यकीन रखो, मायूस दिलों के लिए मौजज़े नहीं होते। अगर दुनिया में सिर्फ खुशियां ही होती तो हमने सब्र करना कभी ना सीखा होता। तुम सब्र की इंतहा कर दो, अल्लाह मौजज़ों की इंतहा कर देगा। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। कुछ चीजें देर से मिलेंगी, लेकिन तुम दुआ करते रहना और सब्र करते रहना। सब्र करना मत छोड़ देना। हर काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है। जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी बर्दाश्त करके और कभी कुछ नजरअंदाज करके। सब्र करने वाले सुकून में होते हैं,
क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि अल्लाह बेहतर करेगा। सब्र से रहमत का इंतजार कर, जो चीज तेरे लिए है वो तेरे लिए ही है, देर हिकमत पर मबनी होती है। देखो यूं जिंदगी से मायूस नहीं हुआ करते, अल्लाह जाया नहीं करेगा तुम्हारा सब्र, तुम्हारी दुआ, बस थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर मैंने वहां सब्र कर लिया जहां लोगों के लहजों को उनके मुंह पे मारना था। आपकी बेचैनी की एक वजह ये भी हो सकती है कि आपने किसी का सुकून छीन लिया हो। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खा लेती हैं, और जब तालाब सूख जाता है तब चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। कभी ये मत सोचना कि मेरी मदद से किसी का क्या होगा। अगर बारिश का हर कतरा अपने छोटे होने का सोचे तो फिर बारिश कभी भी कहीं भी ना हो। जब रास्ता और वास्ता अल्लाह से जुड़ जाए तो कभी दिल नहीं टूटा करते। उस नफरत से ना डरो जिसका खुल्लम खुल्ला इजहार किया गया हो, बल्कि उस नफरत से डरो जो मोहब्बत में लिपटी हुई हो। जब आप एक मुश्किल दौर से गुजरते हैं, जब हर चीज आपकी मुखालिफत करने लगती है, जब आप महसूस करते हैं कि अब एक मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो हिम्मत ना हारें, क्योंकि ये वो वक्त और जगह है जहां रास्ता जरूर बदलेगा। मोहब्बत तो ये है जब खुदा कहता है मैंने सब कुछ तेरे लिए पैदा किया है, और तुम कहते हो मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। किसी मुकम्मल शख्स की तलाश में जिंदगी का सफर करने से बेहतर है किसी अधूरे इंसान को अपने साथ मुकम्मल कर दें। बहुत से रिश्ते खत्म होने की वजह एक ये भी होती है कि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएं, तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाहे इलाही में कबूल हो चुकी है। जिस दिन तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि जो काम तुम्हारी मर्जी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, उस दिन तुम्हारी बेसुकूनी खत्म हो जाएगी। किसी को माफ करने के लिए उसकी रूह के निकलने का इंतजार ना करें। अच्छे दोस्त सितारों की तरह होते हैं, आप उन्हें हमेशा नहीं देखते, लेकिन आप हमेशा जानते हैं कि वो हमेशा मौजूद हैं। जो शख्स तुम्हारी राय का ख्वाहिशमंद ना हो उसे मशवरा मत दो, ना तुम्हारी तारीफ होगी और ना तुम्हारी नसीहत उसे फायदा देगी। अपने कानों को बेकार बातों से बचाओ जैसे अपनी जुबान को बेकार चीजों से बचाते हो, इसलिए कि सुनने वाला भी कहने वाले का शरीके जुर्म होता है। वालिदैन की खिदमत जन्नत के दरवाजे हैं। खुश नसीब इस दरवाजे को उनकी जिंदगी में और बदनसीब उनकी मौत के बाद ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये दौर वाईफाई का दौर है। जब तक तुम करीब रहते हो लोग तुमसे कनेक्ट रहते हैं, जैसे ही तुम उनसे दूर हुए लोग वक्त जाया किए बिना किसी और वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं जो उन्हें पूरे सिग्नल दे रहा होता है। जिंदगी में कामयाबी का एक राज ये है कि इंसान मिलने वाले मौके को जाया ना करे। किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। बात सारी नियत की होती है। गुजरे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की परेशानी हमारे आज को भी खराब कर देती है। जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसके लिए नेकी आसान और गुनाह करना मुश्किल बना देता है। अगर कोई दिल से बिल्कुल नहीं निकल रहा तो समझ जाओ अल्लाह तुमको इशारा दे रहा है और अल्लाह को तुम्हारी दुआएं मांगना पसंद है। इसलिए दुआओं का सिलसिला जारी रखो, क्योंकि दुआओं से तकदीर बदल जाया करती है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुशी है उस शख्स के लिए जो अपने दिल को फिक्र के साथ और जुबान को जिक्र के साथ मशगूल रखे। कुछ अल्फाज महज अल्फाज नहीं होते, वो कैफियत होती हैं। तब ही समझ आती हैं जब खुद आप पर से गुजरती है। खुशियों का ताल्लुक आपके हालात से नहीं
आपके फैसलों से है। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी सादगी से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लेता था जैसा वो दिखता था। अगर कोई मोहब्बत लेने आए तो उसे मोहब्बत दे देना, मोहब्बत सिखाने ना लगना। खुदा पर यकीन रखना, कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी आस नहीं होती। दुआ मांगी थी आशियाने की, चल पड़ी आंधियां जमाने की। मेरे गम को कोई भी नहीं समझ पाया, क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। जब तक इंसान दूसरे की जगह पर खड़ा ना हो तब तक उसे पूरी बात समझ नहीं आती। जहानत दुनिया पर हुक्मरानी करती है और जहालत उसका बोझ उठाती है। इसलिए जहां तक हो सके अपने आप को जहालत से दूर रखें और ज़हीन बनने की कोशिश करें। अगर आप हमेशा नाराज या शिकायत करते रहते हैं तो लोगों के पास आपके लिए वक्त नहीं होगा। आपस के बिगड़े हुए मामलात खुद ही हल कर लिए जाने से तो थोड़ी ही देर में हल किए जा सकते हैं, ताहम इसमें जितने किरदार जमा होंगे तमाशा उतना ही फैलेगा। लोगों की मिठास और मुनाफिकत मत देखो, अमल देखो। जब बेहतरीन की ख्वाहिश हो तो फिर अल्लाह ताला की तरफ देखो, अपनी ख्वाहिशात की तरफ नहीं, क्योंकि हम तो जान ही नहीं सकते कि हमारे लिए अच्छा क्या है। ये दुआ जरूर किया करो, या अल्लाह हमें ऐसी जिंदगी दे जिस पर हम भी राजी हों और तू भी राजी रहे। जो वक्त गुजर गया उसको याद करके कुछ उसूल बना लें ताकि जो वक्त बाकी रह गया वो अच्छा गुजर जाए। तिनका तिनका अगर उम्मीद के साथ इकट्ठा करो तो घोंसला बनता है, और अगर वही तिनके बेदिली से इकट्ठे किए जाएं तो झाड़ू बन जाती है। जब तुम्हें अपनी जहालत का एहसास होने लगे तो समझ लो कि तुम इल्म पाने लगे हो, और जब तुम्हें अपने सिवा सब जाहिल दिखाई देने लगे तो समझ लो कि अब तुम इल्म खोने लगे हो। ऐ खुदा, हम पर रहम फरमा, हम हालत परेशानी में हैं, हम खता और गुनाहगार हैं और इस हाल में दीवाना बार फिर रहे हैं। जिस शख्स की हिफाजत खुद खुदा करता है, मुर्ग और मछली भी उसकी हिफाजत करने लग जाते हैं। नादान की बातों का बेहतरीन जवाब खामोशी है। सच्ची शुरुआत हमेशा सच्चे अंजाम पर खत्म होती है और झूठी शुरुआत हमेशा झूठे अंजाम पर खत्म होती है। लालच एक ऐसी प्यास है जिसे समंदर का पानी भी नहीं बुझा सकता। जिससे अल्लाह राजी होता है वो लोगों के साथ नेकी शुरू कर देता है। जिंदगी में हर चीज मिलती है, बस जिंदगी देने वाले रब पर यकीन रखो। जिस्म का हर हिस्सा अल्लाह ताला से जुबान की तेजी की शिकायत करता है। आंसू का वजन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके गिर जाने से दिल हल्का हो जाता है। कामयाबी का सफर एक अच्छी सोच से शुरू होता है। दुनिया का माल तो छोड़ना ही पड़ेगा। समझदार तो वो है जो आखिरत का माल जमा करे। मांगने वाले को देकर एहसान मत जता, बल्कि उसका एहसान मानो कि उसने कबूल कर लिया। तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र इख्तियार करो। जिस दिल में दीन जिंदा हो वो दिल कभी मायूस नहीं होता। भरोसा करना है तो अल्लाह पर करो। सही इंसान और सही वक्त वही दिखाएगा। अल्लाह से नेमतें मांगने वाले ये भी ख्याल रखें कि कायनात की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का कुर्ब है। वो रूह कभी नहीं मुरझाती जिसकी प्यास पुराने पाक की तिलावत से बुझती है। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, अल्लाह ताला तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देगा। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो तो अल्लाह और उस मामले के दरमियान से निकल जाया करो। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन गुनाह करने वाले हमेशा सुकून की तलाश में रहते हैं। धोखा खाने वाले का पेट तो भर जाता है, लेकिन धोखा देने वाले की भूख कभी खत्म नहीं होती। जुबान का ज्यादा चलना अकल के कम होने की निशानी है।
एक समझदार आदमी कुछ नहीं जानता, सिर्फ बेवकूफ हर बात जानता है। जो कील उभरी हुई होती है उसका मुकद्दर हथौड़ा होता है। हुक्म तो नफ्स मारने का था, लेकिन हम सबके ज़मीर मरे हुए हैं। हसद से बचो, क्योंकि आसमानों में सबसे पहले इसी गुनाह से अल्लाह ताला की नाफरमानी हुई थी। लोग तुमसे चाहे कुछ भी छीन लें, लेकिन तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। दोस्त को पत्थर समझकर ठोकर मत मारो, बल्कि उसे तराश कर देखो, शायद हीरे से ज्यादा अनमोल हो। अगर तुमसे कोई कुछ मांगे तो हंस कर दे दिया करो और शुक्र अदा करो। अल्लाह ने तुम्हें देने वाला पैदा किया है, मांगने वाला नहीं। सबसे बेहतर ईमान ये है कि तुम्हें इस बात का यकीन हो कि तुम जहां भी हो खुदा तुम्हारे साथ है। तुम अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कुरान से बढ़कर कोई और जरिया नहीं पा सकते। जब तुम किसी चीज को छोड़ देते हो तो वो मुरझा जाती है, लेकिन जब तुम कुरान को छोड़ देते हो तो तुम खुद मुरझा जाते हो। कुरान की ये खूबसूरती है कि तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन ये तुम्हें बदल देता है। बदबख्त है वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए हजारों किताबें पढ़ ली, लेकिन कुरान मजीद उसकी अलमारी पर गर्द आलूद होता रहा। कभी कभी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है, लेकिन हम उस वक्त भी शुक्र अदा करने के बजाय ये बोल देते हैं कि काश कुछ और मांग लेते। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर है, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर है। रिश्ता निभाना है तो आंखों की तरह निभाया करो। साथ जागती हैं, साथ सोती हैं, साथ हंसती हैं और साथ रोती हैं, और फिर एक दिन साथ ही हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो किस मंजिल पर जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह ना करो। कुछ लोग अपने लम्हों को संवारने के लिए दूसरों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। जिंदगी में जब कभी हमारा खुद से सामना होता है तो पता चलता है कि हमने बेकार ख्वाहिशों की खातिर अपना दिल कितना दुखा रखा है। गम छोटे आदमी को तोड़ देता है और बड़े आदमी को और बड़ा कर देता है। जब अल्लाह किसी को बेहतरीन से नवाजना चाहता है तो पहले उसे बदतरीन से गुजारता है। कामयाब लोग बदतर हालात से सीखते हैं और बेहतरीन बन जाते हैं। कुदरत आपकी जिंदगी में आजमाइशें आपको मुश्किल में डालने के लिए नहीं, आपका कद बड़ा करने के लिए भेजती है। आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, तो आप अच्छा बोलना शुरू कर दें। संभाल कर रखी हुई चीज और गौर से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। नफरत से बड़ा कोई दुश्मन नहीं, और मोहब्बत से बड़ा कोई दोस्त नहीं, और अखलाक से बड़ी कोई ताकत नहीं। पूछा गया कि सब्र जमील क्या है, तो जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो कि मेरे रब का शुक्र है। शुक्र का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीज का जवाब ना देना, और तीसरा दर्जा बद अखलाकी का जवाब अखलाक से देना। इंसान का माजी चाहे कितना ही गुनाहों से भरा हुआ क्यों ना हो, उसका मुस्तकबिल अभी बिल्कुल पाक है। खुदा तौबा को बहुत पसंद करता है। खामोश रहो या फिर अपने लफ्जों को इस काबिल बना लो कि वो खामोशी तोड़ने के काबिल हों। इंसान आखिरी लम्हे तक अपने आप को यकीन दिलाता रहता है कि मौत तो दूसरों को आती है, मुझे शायद ना आए। तालीम जरूरी है, लेकिन तरबियत के बगैर तालीम नामुमकिन ही नहीं बल्कि बेमकसद हो जाती है। ऐसे शख्स का एहसान कबूल ना करो जो अपने घर वालों से अच्छे से पेश ना आता हो। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नुम से नहीं। हालांकि जहन्नुम से बचा जा सकता है, लेकिन मौत से नहीं। खुदा के रास्ते में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। तकलीफ और दर्द
एक ऐसा तोहफा है जिसमें रहमत छुपी हुई होती है। ठोकरें आपको मजबूत बनाती हैं, हर तकलीफ आपके लिए जलती हुई मशाल है। अगरचे समंदर में गहराई होती है, लेकिन दिल का साहिल सबसे ज्यादा गहरा होता है। समझदार लोग बहस नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि सिवाय आपस में रंज और गम पैदा होने के इससे कोई फायदेमंद नतीजा नहीं निकलेगा। ज्यादा कस्में खाने वाला झूठा, ज्यादा चापलूसी करने वाला मुनाफिक और ज्यादा बातें करने वाला बेवकूफ है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। जोर रखने वाला इंसान वो है जो अपने आज को गुजरे हुए कल से बेहतर बनाए। मुकाबले का पहला मैदान तुम्हारा नफ्स है, इससे जंग करके आजमा लो कि तुम आजाद हो या गुलाम। सबसे अच्छा तोहफा वक्त है, क्योंकि आप अगर किसी को अपना वक्त देते हो तो आप उसे अपनी जिंदगी का वो पल देते हो जो कभी लौट कर नहीं आएगा। अपने इस्तेमाल में आने वाले रिस्क को अच्छे से इस्तेमाल करना भी इबादत है। जल्दबाजी इंसान को तबाह कर देती है, चाहे वो किसी भी तरह की हो। बाइज्जत अंदाज में नाकाम हो जाना बेइज्जत होकर कामयाब होने से बेहतर है। पैसे की अमीरी तो आम है, दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। जिसके पास अल्लाह का ख्याल है वही शख्स माला माल है। हक ये है कि दिल में उसी को रखो जिसने दिल बनाया है। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते और कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। मांगने वालों को दुनिया देती है और देने वालों को अल्लाह देता है। अच्छी बात का जानना पहला मरहला है, इस पर अमल करना दूसरा मरहला है और अल्लाह के फजल से तीसरे मरहले पर कामयाबी आपका इंतजार करेगी। दलील देकर मोहब्बत को पाया नहीं जा सकता, मोहब्बत खुद सबसे बड़ी दलील है। जिस जहन में सवाल उठता है जवाब भी उसी जहन में पैदा होता है। नाकाम लोगों के दो निशानियां होती हैं, सोचते रहते हैं अमल नहीं करते, या बगैर सोचे ही अमल शुरू कर देते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को इज्जत दो तो तुम इज्जत वाले बन जाओगे। अल्लाह उसकी सुन लेता है जो उसकी तारीफ करता है, इसलिए अल्लाह की तारीफें किया करो। बेशक तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। जिंदगी में हकीकी आजादी तुम तब महसूस करोगे जब तुम्हारी ये सोच बन जाएगी कि मैंने तो अल्लाह को राजी करना है, बाकी जिसे नाराज होना है तो हो जाए। हम लोग भी अजीब हैं, सवाब की खातिर मरे हुए इंसान को कंधा जरूर देते हैं, मगर जिंदा इंसान का सहारा बनने से कतराते हैं। किसी गुनाह का आम हो जाना उसे हलाल नहीं कर देता, बल्कि अजाब इलाही का खतरा और बढ़ा देता है। अल्लाह से बढ़कर कोई अपने बंदे का खैर ख्वाह नहीं। अल्लाह का बनाया हुआ हर शख्स मुकम्मल और खूबसूरत है। खामी और कमी तो हमारे अखलाक और रवैये में है। सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत करने वाला आदमी कभी दूसरों से मोहब्बत नहीं कर सकता। मोहब्बत करेगा भी तो अपनी जरूरत के लिए, मतलब पूरा होते ही छोड़ जाएगा, चाहे दूसरा कितना ही वफादार क्यों ना हो। हम बड़े घर में रहते हैं या किसी झोपड़ी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल जिंदगी तो हमारे अंदर ही होती है। जख्म खाकर भी मुस्कुराना और नाखुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी ताकत है। जो कुछ आपके पास है, अगर आप उसे काफी समझते हैं तो आपके पास सब कुछ है। अपनी निगाहें सितारों पर रखिए, लेकिन ध्यान रहे आपका पैर जमीन पर होना चाहिए। अगर आप किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने आप को जाया कर रहे हैं। सबसे बड़ा जाहिल शख्स वो है जो अपनी पूरी जिंदगी में इस बात को ना जान सका कि उसका दुनिया में आने का मकसद क्या है। शिकवे शिकायत की लत लग जाए तो नाशुक्री जुबान की लज्जत बन जाती है और इंसान
हमेशा बेसुकून रहता है। इंसान को किसी की नीयत जानने का नहीं, बल्कि अपनी नीयत साफ रखने का अजर मिलेगा। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। किसी की खुशी से हसद करने का कोई फायदा नहीं होता। सबको वही मिलता है जो अल्लाह ने उनके नसीब में लिख दिया हो। जब जुबान की इस्लाह हो जाए तो दिल नेक हो जाता है। अगर तुम्हारे रिस्क से दूसरों की जरूरियात पूरी हो रही हैं, तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिस्क पाक कर रहा है। कोशिश करें कि अपनी तरफ से जिंदगी का हर लम्हा सबके साथ अच्छे से अच्छा गुजरे, क्योंकि जिंदगी नहीं रहती, लेकिन अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। इंसान खुद गर्ज हो जाए तो वो दूसरों से रास्ता छीनकर अपने लिए आखिरी रास्ता बना लेता है। गुलाब का कोई भी नाम रख लो, मगर पहचान खुशबू से होती है। इंसान किसी भी रंग, रूप या जात का हो, मगर पहचान अखलाक से ही होती है। कोई भूल जाए तो परेशान मत हुआ करो। लोग तो अपने हाथों से दफनाए हुए लोगों की कब्रें भूल जाते हैं। जब मंजिल पर पहुंचा तो मालूम हुआ खुद अपने लिए राह की दीवार भी मैं था। जिंदगी का इम्तिहान इंसान जहानत और मेहनत से पास नहीं कर सकता। कुछ इम्तिहान के लिए किस्मत के अलावा और कोई चीज दरकार नहीं होती। अपनी इबादत में ताकत और कुव्वत पैदा करें। जिस दिल में अल्लाह के बंदों की मोहब्बत ना हो, वो अल्लाह की मोहब्बत से भी महरूम हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लोगों को हकीर ना समझें, वरना खालिक की नजरों में हकीर हो जाओगे। जो लोगों को छोड़कर अल्लाह से करीब होना चाहता है, वो अल्लाह की कुर्बत से महरूम हो जाता है। फूलों की सोहबत से खुशबू पैदा होती है और बुजुर्गों की सोहबत से बुजुर्गी। जब दिल अल्लाह से लग जाए तो दिल और दिमाग दोनों सुकून में रहते हैं। सब्र करने से सब्र आ जाने तक का सफर निहायत ही तकलीफ दे होता है। और तुम इख्तिदाम में अल्लाह के सिवा किसी को अपना नहीं पाओगे। वो उसी को मयस्सर होता है जो उसे पाना चाहता है। खुदा हमें उन लोगों से महफूज रखे जो दिल में दिमाग रखते हैं। अल्लाह के सिवा कोई भी दिल से खौफ और बेचैनी को नहीं मिटा सकता। जिनके दिल में नतीजे का खौफ होता है, वो किसी के साथ बुरा करने से पहले कई बार सोचते हैं, और यही डर फिर उन्हें उस बुराई से रोक लेता है। जिंदगी के इस सफर में सब्र इंसान का बेहतरीन साथी है, लेकिन जिंदगी में कुछ न करना और हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहना सब्र नहीं, बल्कि बुज़दिली है और अल्लाह पर तवक्कुल की कमी है। अल्लाह की याद के बगैर जिंदगी अधूरी है। इंसान सब कुछ पाकर भी अधूरा ही रहता है, और जब अल्लाह की याद साथ हो तो मुश्किल से मुश्किल घाटियों से भी इंसान बाआसानी सब्र के घूंट पीकर गुजर जाता है। कुरान की ये तासीर है कि आप जब भी ईमान और अच्छी नीयत के साथ पढ़ें तो वो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर देगा, और अगर समझ कर पढ़ोगे तो कुछ ही आयात में तुम्हें अपने कई सवालों के हल मिल जाएंगे। इंसान के पास कई सलाहियत होती हैं जिनका इंसान को खुद भी पता नहीं होता, लेकिन अगर इंसान अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ने की सोच ले तो उसकी कई सलाहियतें उजागर होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हिम्मत करो, तुम बड़े मैदान फतह कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसी ही सच्ची और दिलचस्प वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल जन्नत का सफर को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।